Namaskar and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर उपस्थित हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines. Benchmark domestic stocks log losses, snapping multi-sessions record-setting rally. Sensex closes at 48,174. Nifty settles at 14,146. Rupee appreciates 7 paise against the dollar amid weakness in the American currency. And oil prices rise to their highest since February last year after Saudi Arabia agreed to reduce output more than expected. घरेलू शेयर बाजार में पिछले कई सत्रों से जारी रिकॉर्ड तेजी के बाद आज हुई गिरावट। सेंसेक्स 48,164 पर बंद हुआ। निफ्टी 14,146 हुआ दर्ज। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ और सऊदी अरब द्वारा तेल उत्पादन में उम्मीद से अधिक कटौती पर सहमति के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत पिछले वर्ष फरवरी के बाद सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंची। आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले आमंत्रित करें हमारे आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं हम बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर एके भट्टाचार्य को। एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए लिए चलते हैं श्रोताओं को शेयर बाजार। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ सत्रों में लगातार रिकॉर्ड तेजी जारी रही थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 246 अंक यानी 0.54% नुकसान के साथ 48,174 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53 अंक यानी 0.38% घटकर 14,146 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर नजर डालें तो यहां निवेशकों की दिलचस्पी मिली जुली दिखी है। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन आज बेहतर रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स आज निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 0.39% ऊपर आकर बंद हुआ। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.14% की गिरावट हुई। The Sensex and Nifty today logged modest losses amid mixed global cues. However, the BSE Sensex closed above 48,000 mark, while the Nifty remained above 14,000 level. Snapping multi-session record-setting rally, the Sensex declined 264 points or 0.54% to trade at 48,174, and the NSE Nifty 50 index fell 53 points or 0.38% to 14,146. At the broader market at BSE, mid-cap and small-cap indices outperformed the Sensex. The BSE mid-cap index rose 0.39%, while the BSE small-cap index depreciated 0.14%. In the Sensex pack, shares of 14 companies climbed, while 16 logged losses. Power Grid was the top gainer as it climbed 4.3%, followed by Bharti Airtel, which gained 2.6%. ONGC climbed 2.1%, Ultratech Cement rose 2%, and ICICI gained 1.8%. On the other side, ITC declined 2.9%, Reliance plunged 2.6%, and Bajaj Finance fell 1.8%. Axis Bank and HCL both slipped around 1.5%. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors climbed. The utilities sector was a top gainer as it surged 2.2%, followed by metal, which climbed 2.1%. Basic materials gained 1.6% and power appreciated 1.5%. On the other hand, energy plunged 2%,
Fast-moving consumer goods declined 1.2% and IT fell 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,526 companies gained while 1,585 declined. Shares of 151 companies remained unchanged. 488 companies rose to their 52-week high while 38 companies fell to their 52-week low. Mr. Bhattacharya, welcome to the show. Thank you. The program. And, 264 points, making a small dent in a soaring Sensex at 48,000 plus. How do you see that? Well, as you rightly pointed out, the Sensex and the Nifty have been rising for 10 consecutive sessions. This marginal fall has to be seen in what has been happening, particularly in the U.S. There are some developments in the Georgia elections for the Senate, which do not give a clear indication of what kind of authority the new U.S. president will have in getting his legislative bills passed. So that has given some nervousness in the market. So which is what is getting reflected in the markets in India. Obviously, after 10 consecutive days of rise, this kind of a marginal fall shows and tells me that the markets are really, in a robust mood. Yes. And probably they are preparing for the budget that is going to be presented in about 3.5 weeks from now. My reading is that if you look at it from January 2020 to December 2020, that kind of a time space, you realize that the markets have grown just by around 13-14%, which is not very unusual, particularly if you see that this was the COVID-19 year. So this COVID-19 calendar year, markets growth has been on a point-to-point basis, as I said, from January beginning to December end of 2020, has seen a 13-14% rise, which tells you that the market is really banking on the future recovery. And they expect that the recovery will show greater earnings in the corporate sector, which indeed the Q2 results showed. And remember that the Q3 results will start coming in from the next few days. So given the fact that the direct tax collections installments in December 15th, they were robust, my sense is markets are still in a buoyant mood, and this buoyancy will probably be tested when the budget is presented on 1st of February, depending on what kind of proposals come through the finance minister's bag. AKB, यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो आज जो छोटी और मझोली कंपनियों का रहा है रुझान, उसमें निवेशकों की दिलचस्पी अपेक्षाकृत बनी रही है। मिड कैप इंडेक्स में लगभग आधे फीसदी की हम बढ़त देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में अपेक्षाकृत कम बिकवाली का शिकार हुआ है। सिर्फ 0.14% की गिरावट हुई। इस यानी जो आज का यह रुझान है वह क्या दर्शा रहा? विस्तृत बाजारों में लोगों की दिलचस्पी अभी बनी हुई है। आपने अभी भी कहा कि जो यानी दीर्घकाल है उसमें जो बुलिश ट्रेंड है वो रहने के ही आसार अधिक है बजट तक। देखिए, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो छोटी कंपनियों का जो इंडेक्स है जी, उसमें तो 0.14% का डेप्रिसिएशन डिक्लाइन हुआ है जी। पर मिड कैप इंडेक्स आपने सही कहा कि उसमें बढ़ोतरी मिली है, और ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो सेंसेक्स से बेहतर रहा है। इसका साफ ये है कि जो कोविड-19 में, लॉकडाउन में जो चपेट छोटी और मझले उद्योगों को लगी थी, मुझे लग रहा है कि आस्ते आस्ते जो वो लॉकडाउन से बाहर आए हैं और छोटी मझले उद्योगों में जो गति आ रही है थोड़ी बहुत, उसी का एक संकेत है
कि मार्केट्स मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो अभी भी एक जोश दिख रहा है सेंसेक्स के तुलना में, तो इसी का एक कारण है कि, और एक इंडिकेशन ये है कि जो फाइनेंशियल जो एलोकेशंस जो हुए हैं, जो पेमेंट्स में काफी जो सरकारी पेमेंट में जो रुकावट जो आई थी, जो पहले 3-4 महीने में कोविड-19 के बाद, मार्च के बाद पहले तिमाही में, वो इंडिकेशन ये आ रहा है कि डेटा भी ये कह रही है कि छोटे और मझले उद्योगों की जो पेमेंट प्रॉब्लम्स जो थी उसमें काफी सुधार आया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट उसी को एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट ये समझ रहा है कि छोटे और मझले उद्योगों में अभी भी काफी दम है, और इसीलिए जिस दिन आपका ओवरऑल जो ब्रॉड मार्केट जो है सेंसेक्स में जो कमी आई है, पर मिड कैप इंडेक्स में बढ़ोतरी आई है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कमी तो हुई है, पर सेंसेक्स से ज्यादा कमी नहीं हुई। You mean, Mr. Bhattacharya, as we know, the government is on a reform mode, and some reforms have taken in the MSME sector also, as far as the payments are concerned. You think that has also had a positive effect? That is exactly what I was saying, that there was the huge backlog of payments, yes, particularly for the small and the medium sector, and those payment the channels have been eased up. Right. And the backlog is getting clear. And if you see the banking sector also, the banking sector has also come forward, providing a lot of accommodation to the MSME sector. The moratoria that was announced for COVID hit companies, they were particularly in the small and the medium sector. That moratorium period has been extended. There is also the IBC, Insolvency and Bankruptcy Code enforcement, that has also been relaxed a bit for such companies. So I think there is overall kind of a forbearance. The classical economic policy thinking may frown upon such forbearance, but what it has meant is some sort of a reprieve and some hope for recovery for these companies, small and medium companies, which do provide jobs. So therefore, the markets probably are recognizing that, and which is why you see that the small and the medium cap index indices have done relatively better, even on a day when the Sensex has declined marginally. Well, we've had new labor codes, new farm laws, insolvency and bankruptcy code, low corporate profit tax, single nationwide GST, and widespread digitization. All are these several key reforms. So I think they're all showing the results that we are stable. And GST, remember, you mentioned GST, and GST, what we have seen is e-invoicing, the electronic invoicing system has been introduced for companies above 500 crore. And from January 1, it is now been any company which is more than 100 crore of turnover will come under e-invoicing. And from April onwards, all companies, e-invoicing will be enforced. Now, what it means is that virtually there is no possibility of a leakage in GST collections. And there will be tremendous increase in the ease for these companies, particularly the small and medium companies, for preparing their returns, which was a big issue in the early stages of the GST introduction. So, which is also why the GST collections in December, if you have seen the data, have seen a sharp rise. Yes. So, it is, yes, there is some sort of an economic growth impact. The bounce back may have helped GST collections, but in my view, the bigger reason for why GST collections have done well is because of these reforms in the collection, the procedures, methodology. And if this pace continues, reforming the way GST procedures are in place and GSTs are collected, I think it will go a long way in sustaining GST collections, which will also be a big boost to government's finances, and the budget will probably give us a better idea of how the government finances have fared. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं।
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे मजबूत हुआ, 73 रुपए 11 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.22% नीचे आकर 89.24 पर बना हुआ था। एक भी हम रुपए की स्थिति पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तेल के दाम जिस दिशा में अब जाते दिख रहे, उसमें रुपया कैसी स्थिति में नजर आ रहा? देखिए, जो रुपए की जो स्थिति जो है इस वक्त दो चीजों से ये इसके ऊपर प्रभाव आ रहा है, जो जिस तरह से आपने उसके नंबर आंकड़े दिए। एक तरफ तो है कि जो अमेरिकन जो करेंसी जो है डॉलर, उसमें काफी नरमी दुर्बलता दिख रही है, और उसके कारण जो भारतीय जो मुद्रा जो है उसमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। इसीलिए जो एक एप्रिसिएशन का जो एक ट्रेंड अभी तक दिखने को आया है, उसी का पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि हालांकि हमारी एक्सपोर्ट्स में अभी भी काफी वीक है, पर इंपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही है। और हालांकि तेलों के दाम में थोड़ी बहुत ज्यादा आ रही है, पर अभी तक जो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो पिछले साल की तुलना से काफी कम है। और तीसरा कारण ये है कि अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जिसे हम बौछार कह सकते हैं, पिछले 8-9 महीने में जो हुई है, मार्च के बाद जो 2 पैसे निकाले गए थे, उसके बाद जितने पैसे अंदर इकोनॉमी में आए हैं, वो डेट से निकल के इक्विटी में इतने पैसे आए हैं, उससे भी जो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, वो एक कंफर्टेबल लेवल में आ गया है, करीबन $600 बिलियन के आसपास घूम रहा है वो। तो ये तीनों कारणों के लिए मैं देखता हूं कि रुपए की जो एक आउटलुक जो है वो काफी स्ट्रांग हो गई है। और उसका और एक भी कारण ये है कि अगर आप देखें जो एक्सटर्नल अकाउंट में जो एक हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे इकोनॉमी में पिछले कई सालों से लगी रहती थी, ये पहला साल आया है कि करंट अकाउंट में सरप्लस आ गया है पिछले दो तिमाहियों में। तो और इसलिए अमेरिका भी अब काफी हमारे पीछे, भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि हम शायद करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो पर सवाल ये है कि सरप्लस अकाउंट हुआ है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में नरमी आई है, और भारत में इतने ज्यादा विदेशी मुद्रा का जो एक जो बौछार आया है एफपीआई के इन्वेस्टमेंट से, सभी कारणों से मैं समझता हूं कि रुपए की दिशा इसी तरह बनी रहेगी। बहुत लोगों का मानना ये है कि अगले कई हफ्तों में शायद रुपया और भी स्ट्रांग हो जाए। Well, you mentioned the foreign portfolio investors, Mr. Bhattacharya. We have news that FPIs have pumped more than 1,03,000 crore rupees in the Indian markets during the calendar year 2020. According to the National Securities Depository Limited data, during the calendar year, FPIs have pulled around 1,05,000 crore rupees from the debt market, but invested around 1,70,000 crore rupees in the equity market, more than 25,000 crore rupees through debt voluntary retention route, and pumped more than 12,500 crore rupees in hybrid funds. Indian markets have attracted the highest amount, more than 71,000 crore rupees for the calendar year in December, while the biggest foreign portfolio investment outflows have been seen in the month of March, when PPIs have pulled out more than 1,18,000 crore rupees from the Indian market due to the spread of the coronavirus pandemic and worldwide lockdowns. To put it briefly, can I sum up your comment as saying that, well, we have enough money, enough excellent foreign reserves, and that gives us a kind of an economic shield or a kavach, as we say? Well, yes. I mean, this is a safeguard. Your import cover is in a very comfortable position of almost 15 months of import cover. Normally, we have been seeing import cover of only for 11 months. So it's a good sign. But we need to use these foreign exchange reserves in a proper, more productive assets. They should not lie unutilized and unexploited in just pure assets. So that's one challenge. That will be a big policy challenge going forward. And the second thing is, this is an outcome of inflows of foreign money
just as they can come in, they can also go out. So it will be important to maintain the resilience of the Indian economy. It will be important to take steps, policy steps by which the growth prospects remain bright. So therefore, while this is a happy situation to be in, it does not mean that we can relax our guards. So that would be my assessment at this point in time. Right. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका में जॉर्जिया राज्य में सीनेट मतदान परिणाम को लेकर अनिश्चितता के मद्देनजर निवेशकों के बीच मिला जुला रुख वैश्विक बाजारों में देखा जा रहा है। एशियाई शेयर बाजार की ओर चलें तो चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% लाभ के साथ आज बंद हुआ। हांगकांग का हेंग सेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 0.2% ऊपर आ गए। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% नीचे चला गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार लिखे जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक 40 दोनों 0.8% ऊपर थे। लंदन का FTSE 100 1.7% ऊपर चल रहा था। A look at the U.S. markets now. Well, the U.S. equity indices gained yesterday, rebounding from a weak start to the year. Investors anxiously awaited the results of two Senate runoff races in the state of Georgia that are expected to determine the balance of power in Washington. The Dow Jones Industrial Average gained 0.6%, the S&P 500 climbed 0.7%, and the Nasdaq Composite Index surged 1%. AKB, ये जॉर्जिया में जो मतदान की प्रक्रिया है वह कह लें किस रूप में प्रभाव डाल रही है वैश्विक बाजारों पर और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, परिणाम चाहे जिस किसी के पक्ष में तय हो अंततः? देखिए, ये जो अमेरिकन जो सिस्टम जो है उसमें ये सेनेट में 100 सीट होती हैं। उसमें इस वक्त की जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो शेयरिंग जो है वो इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास 52 सीट हैं और डेमोक्रेट्स के बाद 48 सीटें थी और 2 सीटों की जो रिपब्लिकन के पास है उसका इलेक्शन हो रहा है जॉर्जिया से, क्योंकि पिछले जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनका कोई परिणाम नहीं निकला था। तो अगर मान लीजिए डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन की पार्टी अगर ये 2 सीट नहीं जीत सकेगी तो इसका मतलब सेनेट में इनकी जो मेजॉरिटी नहीं आएगी, क्योंकि सेनेट का रूल ये है कि वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि कमला हैरिस बनने वाली है उनके पास एक टाई ब्रेकर वोट होता है। तो वो अगर 50 के अगर डेमोक्रेट के मेंबर सेनेट में होंगे और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो स्पीकर होंगी सेनेट की, उनके बदौलत वो जो कोई जो बिल जो है लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट वो पारित कर सकेंगे। पर अगर मान लीजिए ये रिपब्लिकन ये जॉर्जिया के 2 सीटों में से एक सीट को अपने पास रख लें तो रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी सेनेट में रहेगा। इसका मतलब जो बिल्स जो हैं लेजिस्लेटिव बिल्स जो हैं वो बाइडेन साहब को एक बाईपार्टिजन सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत होगी। उससे आशंका ये है कि बाइडेन साहब की जो प्रेसिडेंसी जो है उसमें थोड़ी बहुत एक अटकन सी आ सकती है। उनकी जो एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट जल्दी करना शायद डिफिकल्टी आ सकती है और इसीलिए मार्केट उसी नर्वसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए आज मार्केट में इतनी थोड़ी बहुत उथल पुथल पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट में हुई थी। That was rather well explained, isn't it, Manoj? बिल्कुल। U.S. elections are always very complex to understand, but Mr. Chakravarti, sir, you made it really nice and thank you. आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तय करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीयों कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। भारत के इन कुशल कामगारों को जापान सरकार विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवास का दर्जा प्रदान करेगी। कुशल भारतीय कामगारों के लिए निर्धारित 14 क्षेत्र हैं: नर्सिंग केयर, इमारतों की साफ सफाई, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, औद्योगिक मशीनरी, विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, जलपोत निर्माण और संबंधित
उद्योग तथा अन्य। एकेबी संक्षेप में हम समझना चाहेंगे कि ये जो समझौता हो रहा है वह किस रूप में, यहाँ से कह लें कि हमारे जो कुशल कामगार होंगे उनके रोजगार की दिशा में। देखिए, ये जो रोजगार के दिशा से ज्यादा मैं समझता हूँ इसकी जो प्रभाव जो आएगा वो है कि हमारे देश की जो वर्कर डिसिप्लिन, वर्कर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, वर्कर स्किल्स, उसमें बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आ सकता है। जापानी क्वालिटी के ऊपर जोर देना और जापानी के जो 5S जो मेथड जो है, जिसे वो साइरी कहते हैं, साइटन कहते हैं, साइसो कहते हैं, साइकेत्सु कहते हैं और शिट्सुके कहते हैं, वो डिसिप्लिन, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लीनिंग, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, ऐसे जो चीजों के ऊपर वो जोर डालते हैं, वो अगर मैं समझता हूँ कि वो अनुशीलन और वही एक अगर हम डिसिप्लिन हम हमारी वर्कर्स कम्युनिटी में, वर्कफोर्स में हम ला सकें, तो ये 14 सेक्टर से अगर ये बढ़कर काफी इंडियन कंपनियां उसको अपना सके, मैं समझता हूँ उससे प्रोडक्टिविटी गेन्स में बहुत ज्यादा एक बदलाव आ सकता है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है और सोशो इकोनॉमिक स्फीयर से मैं समझता हूँ ये जापानी एक इन्फ्लुएंस में इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। As Swami Vivekananda always said that Indians have a lot to learn from the Japanese in terms of work culture. Let's move on to oil. Oil prices today rose to their highest since February 2020 after Saudi Arabia agreed to reduce output more than expected in a meeting with allied oil producers. On the other hand, industry figures showed that U.S. crude stockpiles had come down last week. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $54.50 per barrel, while WTI crude prices were around $50.50 per barrel. And तेल की दिशा पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। तेल के दाम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बार फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, वह क्या स्थायी प्रवृत्ति मानी जाए या तात्कालिक ये बढ़त? नहीं, मैं समझता हूँ ये तात्कालिक नहीं है, ये एक स्थायी एक इंडिकेशन है ये इसका। ये संकेत जो आ रहा है कि ये संकेत मैं मानता हूँ पॉजिटिव भी है और चैलेंजिंग भी है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका ये प्रमाण ये है कि विश्व में तेलों की जो खपत डिमांड जो थी वो कम हो गई थी, वो डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ रही है और वो बढ़ने का ही संकेत है कि तेलों के दाम आज ब्रेंट की दाम $54 तक आ चुकी है और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड जो है उसका दाम $50 तक आ चुका है। ये इसी का प्रमाण है। और दूसरी तरफ ये एक मैं समझता हूं कि एक चैलेंज इसलिए है कि अगर तेलों के दाम बढ़ेंगे, भारतीय अर्थनीति के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये तेलों के दामों के जो एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है उसको हम किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करें और किस तरह से कंजर्वेशन के रूट से और एफिशिएंसी के रूट से हम आगे बढ़ सकें। जी, आइए चलें सर्राफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख के बीच सोने के दाम बढ़े रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 73 रुपए बढ़ा, 51,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 517 रुपए उछलकर 71,375 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एकेबी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। And now the headlines again. Benchmark domestic stocks log losses, snapping multi-sessions record-setting rally. Sensex closes at 48,174. Nifty settles at 14,146. Rupee appreciates 7 paise against the dollar amid weakness in the American currency. And oil prices rise to their highest since February last year after Saudi Arabia agreed to reduce output more than expected. On that note, it's time for me, Lalema Aneja Dang and Manoj Pathak to sign off. Namaskar.